Hello aspirants, welcome back to ETakshila Classes. My name is Vasundhra and today I am back with another lecture on nouns. तो last class में हमने क्या discuss किया था? We discussed the first part of the nouns wherein we talked about what is a noun essentially, what are the different types of nouns associated with it, the case of noun and gender and number जो दो concepts noun के साथ attached है. So today we are going to start with the second part, which is your rules, and we are going to discuss some PYQs that are related to nouns. Okay. तो सबसे पहले हम लोग वर्ड्स डिस्कस करते हैं जो हमने वोकैब वैली के अंडर स्टडी करे थे. तो लेट्स डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स. राइट. तो पहला जो हमारा वर्ड था वो है ludicrous. The first word that we had was this. तो आई होप आपने इसका मीनिंग जो है वो फाइंड आउट किया होगा. इसका मतलब है ridiculous or something that is very foolish. Right? For example, अगर मैं बोलती हूँ कि it is ludicrous of you to think that this was an easy test. ठीक है? So it was foolish of you to think कि ये एक आसान टेस्ट था. इसके साथ जो सेकेंड वर्ड हमने किया था वो था astonish. Astonish का क्या मतलब होता है? It means shock basically. For example, I was astonished to see his performance. I was shocked to see his performance. So astonish is surprise or shock. Done. The next word that we had here was discord. तो discord का मतलब क्या होता है? Discord का मतलब होता है disharmony. मतलब कि जैसे अगर लोगों के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाए या किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्कॉर्ड. So it means disagree. Right? There was a sense of discord among the members of the group. Okay. Then the last word that we had was perpetual. क्या है word हमारा? Perpetual. तो perpetual का मतलब क्या होता है? Continuous. जो चलता रहे लगातार सालों साल. What is perpetual? It means continuous. It means, for example, the water flows perpetually through this river. Like इसमें से पानी जो है वो continuously जो है वो flow करता है. So perpetual is something that lasts forever. Okay, so these were the words that I had given to you and you had to find out the meaning. And with this now we are going to move to the basic our topic for today, that is nouns and its rules. Right? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम first rule की, which says कि these nouns are always used in a plural form and cannot be used as singular. तो पहला रूल हमें ये बताता है कि कुछ nouns ऐसे हैं जो हमेशा plural form में यूज करे जाते हैं. They are never singular. For example, trousers, jeans, forceps, sneakers, scissors. You will never say I have bought a trouser for myself. I have bought trousers for me. Right? I have got a pair of sneakers. I have got sneakers for you. I have not got sneaker for you. Because these are the things that are always used in pairs. आप कभी भी scissors का single blade नहीं use कर सकते. You have to use it in a pair. So that is why it is always called as scissors. Right? Second rule कहता है कि some nouns take s or es, but they act as singular and always take a singular verb. Singular verb का मतलब यहाँ क्या है? is या are का लगना. जैसे अगर हम बोलते हैं scissors तो इसको हम plural में यूज करते हैं. हम बोलते हैं scissors are, jeans are, trousers are. ठीक है? These trousers are not fitting me. Right? These scissors are not, this pair of scissors, yeah, these scissors are not sharp. Similarly, scenery, rabies, diabetes, mumps, measles, इनके आगे एस जरूर लगा हुआ है. जैसे अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो क्योंकि एस लगा है तो जरूरी नहीं है कि मैं बोलूंगी कि मैथमेटिक्स आर. आई विल से मैथमेटिक्स इज, बिकॉज इवन इफ इट इज यूजिंग एस और ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ड, स्टिल इट इज अ सिंगुलर. उसका नाम है. लाइक पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ वर्ड्स जो है आप देखिए, न्यूज, इनिंग्स, फिर भी इनके आगे हम इज लगाते. ठीक है? दिस न्यूज इज ट्रू, दिस न्यूज आर ट्रू हम नहीं बोलते. डन. तो ये है आपके पहले दो रूल्स. ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं. Some nouns are always used in a plural form and always take a
plural helping verb, right? So what does this mean? कि कुछ nouns जो है वो हमेशा plural रहते हैं, जैसे children are, police are, people are, bacteria are. bacteria जो है plural है, singular क्या है? bacterium, ठीक है? spectacles, stockings, shorts, ये सब चीजें हमेशा क्या रहती हैं? they are always plural. Done. Rule number 4 says that some uncountable nouns are singular and always take a singular helping verb. जैसे कि hair, advice, information, machinery, stationery, इनका कभी भी plural नहीं बनता है. आप कभी नहीं बोलोगे advices या machineries, stationaries, newses, नहीं. कभी भी आप information, furnitures, ये सब words गलत है, ठीक है? आप हमेशा क्या बोलोगे? I have pieces of information. I have bought some pieces of furniture, right? I have a few pieces of stationery. अगर आपको plural में use करना है, ठीक है? I gave him a few pieces of advice, or I gave him a piece of advice. That's it. आप कभी advices, furnitures, luggages, sceneries, ये आप कभी भी नहीं बोलोगे, ठीक है? तो ये हैं आपके 4 rules. बहुत easy हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, and with practice you will be able to remember them. The next rule says that nouns which can be used as singular are. अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ nouns का कोई plural नहीं होता, जैसे sheep का sheeps नहीं होता, sheep ही रहता है, right? इस तरीके से और कौन से words हैं जिनका कभी plural नहीं होता, जैसे deer का deers नहीं होता, issues, offsprings कुछ नहीं होता, juries नहीं होता, innings ही रहता है, ठीक है? तो ये क्या है? वो सब words जिनका कभी भी प्लूरल जो है वो नहीं होता है. डन. नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स सच एज जूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस. अब ये हमने कल ही किया था कि नाउन्स जो है अगर वो कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन अगर हम उसको प्लूरल की तरह या अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए उस कलेक्टिव नाउन के अंदर तो हम क्या करते हैं? उसको प्लूरल कंसिडर करते हैं. जैसे The jury were divided on this opinion. The jury has taken the decision. ठीक है? तो ये आपको जो है ये पता है. Because they are not acting as collective, तो is will be replaced by are. Done. I hope all of it is clear to you. क्योंकि ये जो है हम ये कल भी डिस्कस कर चुके हैं. This point number 6. Now double apostrophe is not used. कल हमने possessive case में बात करी थी. जब भी कोई चीज किसी को बिलोंग करती है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ठीक है? जैसे अगर मुझे बोलना हो कि दिस इज माय मदर्स हाउस, ठीक है? कि मेरी मदर का ये हाउस है. अगर मुझे बोलना हो कि मेरे फ्रेंड की मदर का हाउस है तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलूंगी दिस इज माय फ्रेंड्स मदर्स हाउस. नेवर यूज डबल अपॉस्ट्रोफी, ठीक है? मैं क्या बोलूंगी? द हाउस ऑफ माय फ्रेंड्स मदर. जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, स्नेहाज फादर्स कोट, ये गलत है. करेक्ट क्या है? द कोट ऑफ स्नेहाज फादर. लास्ट वाले को पहले ले आइए और फिर उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाइए. दिस इज हाउ इट शुड वर्क. नेवर यूज डबल अपॉस्ट्रोफी इन अ सेंटेंस. डन. नेक्स्ट, मटीरियल नाउन नेवर टेक्स द इन फ्रंट ऑफ इट. आप कभी भी नहीं बोलते कि आई हैव यूज्ड द वुड टू मेक दिस फर्नीचर, ठीक है? आई एम गोइंग टू ड्रिंक द मिल्क, आई एम गोइंग टू बाय द गोल्ड, आई एम गोइंग टू बाय अ गोल्ड. नो, इट इज रॉन्ग. देखिए, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, ये फिर भी ठीक है, मेरी रिंग का जो गोल्ड, पर ये माई रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड, ये गलत है. क्यों? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो सोना, ये आर्टिकल्स में आपको क्लियर होगा, ये आर्टिकल्स में आपको क्लियर होगा कि द किस तरीके से लगाया जाता है. बट ये याद रखिए कि मटीरियल नाउन के साथ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट इन अ प्योरली सब्जेक्टिव मैनर, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड. फाइन. सिमिलरली, abstract nouns are never used in, abstract noun is never used in plural, right? You will never say he has a kindness, ठीक है? He has an honesty. You will always say he has honesty, he has kindness and things like that, right? So abstract nouns will never be plural. There is nothing called kindnesses, honesties. इस तरीके से आप नहीं लगाओगे. Next,
Any word is ending with s then apostrophe comma is put after s. ये हमने कल भी किया था कि अगर हमारे पास प्लूरल कोई चीज है तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं और फिर नाउन यूज करते हैं. अगर मान लीजिए किसी का नाम ही ऐसा है जो एस पे एंड होता हो, जैसे यहाँ पे लिखा है विकास कार, अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस के बाद एक अपॉस्ट्रोफी लगेगा. दैट इज द करेक्ट फॉर्म. डन. So these are the 10 rules. I hope that they are clear to you. Right. Moving on. Apostrophe is used with living things and never with non-living things. Very important rule. Very very important rule. Spotting errors में ये अक्सर आता है questions में. तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे बोलना हो कि the tables would, तो ये गलत है क्योंकि टेबल जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ कभी अपॉस्ट्रोफी नहीं लग सकता. अगर मुझे बोलना हो प्रियाज फोन, ये ठीक है बिकॉज प्रिया इज अ लिविंग थिंग, यहाँ अपॉस्ट्रोफी लग सकता है. टेबल्स वुड गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड ऑफ द टेबल. सो यू नेवर यूज पोजेसिव केस विद नॉन लिविंग थिंग. राइट. इज इट क्लियर? बिल्डिंग्स रूफ इज हायर देन होम्स रूफ. लेकिन एक्सेप्शन यहाँ क्या है कि जब भी आप दो नॉन लिविंग चीजों को कंपेयर कर रहे हो, जैसे यहाँ देखिए बिल्डिंग का रूफ और घर का रूफ, तब आप अपॉस्ट्रोफी नॉन लिविंग के साथ यूज कर सकते हैं. दिस इज एन एक्सेप्शन. ठीक है. अपॉस्ट्रोफी की अगर हम टॉपिक पे बात करते हैं तो रूल नंबर 13 देखिए, राहुल एंड गरिमा सन इज वेरी इंटेलिजेंट. राहुल एंड गरिमा सन इज वेरी इंटेलिजेंट. और नीचे लिखा है कि राहुल एंड गरिमा सन इज वेरी. बताइए इसमें एरर क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. वो क्या है, यहाँ गरिमा के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा है और यहाँ गरिमा, मतलब ये सेंटेंस जो है इस तरीके से यूज होना चाहिए, अपॉस्ट्रोफी आफ्टर द एस ऑफ द सेकेंड नाउन. डन. तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, बट आप अगर इसको ठीक से याद रखेंगे तो इट्स वेरी इजी. ये सब चीजें आगे जाके कोरिलेट करती जाएंगी आपस में. ठीक है. जैसे जब आप मान लीजिए व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और प्रोनाउंस, सो दिस ऑल विल बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट रूल नंबर 14 सेज कि जब भी आपके पास ऐसा हो, ईच, एवरी, वन, ऐसे वर्ड्स अगर आपके पास हो और सिंगुलर नाउन हो, मान लीजिए ईच बॉय, ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, तो वो क्या लगेगा उसके साथ, इज या आर. इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय इज प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट इज स्टडिंग, राइट, वन स्टूडेंट इज एब्सेंट. तो इन वर्ड्स के साथ अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर. अगर यहाँ पे होता है नीदर ऑफ द बॉयज डैश स्टडिंग, तो यहाँ क्या होगा, आप ये मत सोचो कि बॉयज है तो आर लग जाएगा, तब भी यहाँ क्या लगेगा, इज. ईदर ऑफ द गर्ल्स इज एब्सेंट. ठीक है. वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेजी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग देयर वर्क, राइट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे नाउन प्लूरल जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को समझ के करके आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई इस चीज को करेंगे. इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये वाला जो रूल है अभी मैं आपको नहीं कराऊंगी बिकॉज अभी हमने प्रोनाउन से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नहीं किया है, बट फिर भी चलो स्टिल विद एनी इनडेफिनिट प्रोनाउन लाइक एनीबडी, समबडी, अगर कभी इस तरीके के वर्ड्स आपके लगेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ इसको करते हैं, आई लाइक योर डिसीजन बट नॉट एनीवन्स, कि तुम्हारा डिसीजन मुझे पसंद है पर किसी और का नहीं, तो हम यहाँ ये सेंटेंस रॉन्ग है. हम क्या बोलेंगे, आई लाइक योर डिसीजन बट नॉट एनीवन एल्सेज, और किसी का नहीं. तो जब भी आपके पास इस तरीके से बट आ जाए तो इट विल बी followed with else, right? So these are the 15 rules. 16th rule says that two nouns connected by preposition, अगर कभी इस तरीके से आता है कि one by one he went from door to door, दो nouns के बीच में preposition, right? So in this case the noun will always be singular. You will never say I went from doors to doors. This is purely wrong. So if there is one preposition between two nouns, it will always be, the noun will always be singular.
right? Now there are certain nouns when you add s to them the meaning changes, right? अब देखिए सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, लाइक ही अप्लाइड अ लॉट ऑफ फोर्स, बहुत ज्यादा उसने स्ट्रेंथ लगाई। फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी, जैसे द इंडियन फोर्सेस, राइट? सिमिलरली इशू और इश्यूज में फर्क है, ठीक है। वुड और वुड्स में क्या फर्क है? वुड होता है लकड़ी और वुड्स होता है जंगल। सिमिलरली गुड और गुड्स में फर्क है, गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान। तो इस तरीके से आर्म का मतलब होता है आपका बॉडी पार्ट एंड आर्म्स का मतलब होता है हथियार, लाइक ही टुक अप आर्म्स अगेंस्ट द एनिमी, राइट? इस तरीके से whenever you add s to particular nouns the meaning completely alters, it changes। तो ये कुछ एक words हैं, you can write them down, you can take a screenshot or whatever you want so that you will not have any problem in learning them, okay? First is this and second is this, so you can have a look, model, models, advice, advices, air, airs, good, goods, iron, irons, ये आपको नाउन्स में आ सकते हैं, आपको मीनिंग्स पता होने जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि हमारे पास क्या क्वेश्चंस जो है वो पहले आ चुके हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि किस तरीके के सवाल जो है हमने किए। तो when my friends came to visit us at the railway station they left some of their luggages। अब देखिए सीडीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या है इसमें एरर, टू स्पॉट द एरर इन दिस सेंटेंस। तो अभी हमने बात करी कि लगेजेस जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? They left some of their luggage. There is no such word as luggages. So the answer will be C. Next, everybody was trying to shake hand with the minister. ये आया है CDS में अगेन, बताइए इसमें क्या एरर है? They were trying to shake hands with the minister. So the answer is beta, B. Clear? The next question says, this was an NDA, so pay attention. News travel very fast today and due to advancement in technology. Do you think there is an error? Of course, there is one. I just told you that news is always singular. That is, news is, I told you, this news is true. तो न्यूज के साथ मतलब सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा? न्यूज ट्रेवल्स। एरर कहाँ है? ए में। न्यूज ट्रेवल्स वेरी फास्ट टुडे, न्यूज इज ऑलवेज सिंगुलर। रडार इक्विपमेंट दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली। पढ़िए इसको, रडार इक्विपमेंट्स दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली। अगेन जिस तरीके से लगेजेस कोई वर्ड नहीं है, इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं है, इक्विपमेंट्स कोई वर्ड नहीं, उसी तरीके से यहाँ आपका एरर प्रेवलेंट है। So the answer will be A, radar equipment, not equipments, okay? This was your question number 4. Recently I visited Kashmir and found the sceneries to be marvelous. Very easy. The error lies in which part? The error lies here. There is no such word as sceneries, it is scenery. Clear? So the error is in part B. Right? So you can see how the questions are framed and how the questions are formed in your exams as well as any kind of competitive exam that you are appearing for. Right? So chaliye, with this we have come to the end of the topic nouns, and very soon we will be beginning with pronouns. So I hope you really enjoyed and liked the lecture and you have learned something out of it. So again we are going to study vocabulary, and again I am going to give you 4 words, the meanings of which will be discussed in the next video. So the first word is impediment, second is acrimony, third is intricate, and fourth is placid. Right? तो ये words फटाफट से note कर लीजिए so that in the next class we can discuss the meanings and the sentences for the same. So thank you everybody for joining in, and I'm going to see you next time soon again with another video on pronouns. So keep watching and please subscribe to our channel. Thank you so much.